تو شیخ آصف کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی جتنی تکلیف آپ 162 ووٹ سے ہارنے سے ہو رہی ہے۔ ارے ہرگز نہیں ہرا سکتے عبد الملک کو۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ عبد الملک کوئی مرغی کا بچہ ہے نہ چڑی کا بچہ ہے؟ تم دادا گیری کر کے الیکشن جیتنا چاہتے ہو؟ ہاں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین کا تشریف فرما عالی جناب عزت مآب جناب اختر الایمان صاحب، صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین، MLA بہار جناب عبد المالک صاحب، آپ کے امیدوار اور انشاءاللہ تعالی ہونے والے میئر مالیگاؤں کے جناب عبداللہ صاحب اور دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین، بزرگوں، دوستوں، ساتھی اور سفر کا بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں شام کا آج آخری جلسہ ہے، کل 5 بجے الیکشن کیمپین ختم ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے مہمان مقرر جناب اختر الایمان صاحب تشریف لائے ہیں، وہ بڑے ہی دور سے آئے ہیں، ان کو بھی آپ کو سننا ہے۔ جیسا میں ابھی ہمارے ہونے والے میئر مالیگاؤں کے عبد المالک صاحب کا سن رہا تھا خطاب، مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ مالک صاحب نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کا میئر جیتنے کے بعد، یعنی مجلس اتحاد المسلمین مالیگاؤں کے اندر اپنے بل بوتے پہ انشاءاللہ لازم میئر بنائیں گی، اور یہ پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے بل بوتے پہ میئر بنانے جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں ملک صاحب کی سوچ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا، اور مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی کے اندر اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر مجلس اتحاد المسلمین یہاں سے کیا چاہتی ہے آپ کو بتا دی ہے۔ مگر جب کبھی بھی کوئی بہتر چیز ہونے کو جاتی ہے، میں پچھلے قریب 11-12 دن سے آپ کے شہر مالیگاؤں میں ہوں۔ یہاں پر مجھے پارٹی نے ذمہ داری دی ہے کہ مالیگاؤں جائیے اور یہ جو کارپوریشن الیکشن ہے اس کے بارے میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے مالیگاؤں میں کام کریے۔ اللہ کا کرم ہے، مالیگاؤں سے میرا رشتہ بہت ہی پرانا ہے۔ میں پہلی بار مالیگاؤں آیا تھا 2014 میں، جب 2014 میں یہی عبد المالک صاحب نے یہاں سے اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا۔ جب میں مالیگاؤں آیا تو سب سے پہلے میں مالیگاؤں میں یونس عیسیٰ فیملی کو پہچانا اور عبد المالک کو پہچانا، تو میں مالیگاؤں کے اندر یہاں پر جیسے ہی میرا آنا ہوا، اللہ کا کرم رہا 2014 کے بعد مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ جب موقع دیا 2019 کے اندر مفتی اسماعیل قاسمی صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے مالیگاؤں کے امیدوار تھے، ان کی کیمپین کے لیے مجھے آنے کا موقع ملا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین کا MLA مالیگاؤں سے بنایا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے کون یہاں کے MLA تھے، ان کا بھی معلوم ہے، ان کے والد کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، شیخ رشید صاحب مرحوم کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کیا مالیگاؤں کے لیے کرے آپ جانتے ہیں۔ پہلے کانگریس میں، NCP میں، تمام پارٹیوں میں انہوں نے رہ گئے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، جیسے ہی 2019 میں الحمدللہ مفتی اسماعیل قاسمی صاحب جب جیت گئے مالیگاؤں سے MLA کی حیثیت سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کا جھنڈے کا جب رنگ ہرا تھا تو یہ لوگ سوچے کہ ہم کوئی دوسرا جھنڈا لے کر آئیں گے تو دوبارہ یہاں پر الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے یہاں شیخ آصف صاحب نے ایک منصوبہ طریقے سے یہی سوچ کر آیا کہ کیوں
क्यों ना मैं भी एक हरा झंडा लगाऊं, हरा झंडा लगा के सब पार्टी को छोड़ के अपनी खुद की पार्टी बनाए जिसका नाम रखे इस्लाम पार्टी। इसके बारे में मैं आगे बढ़ाऊंगा। 2024 के अंदर लोग कहने लगे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब 162 वोट से जीते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह का करम है, मुफ्ती इस्माइल साहब 162 वोट से जीते हैं, बेशक 162 वोट से जीते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ शेख आसिफ साहब से और मालेगांव की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुफ्ती साहब को 40 या 50 हजार से जिता देता तो शेख आसिफ को इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी तकलीफ आप 162 वोट से हारने से हो रही है। वो क्यों हो रही है? इन लोग ने ये सोचा कि मुफ्ती साहब जो पिछले टाइम पे 30,000 से ज्यादा से जीते थे, हम यहाँ पर बोकस वोट, चोर वोट बना लेंगे और वो जगह के ऊपर हम वो वोट डाल के मुफ्ती साहब को हरा देंगे। इनका मंसूबा था, इनकी प्लानिंग थी। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, तुम अपने आप को बहुत बड़ा दुनियावी प्लानर बना लो, मगर तुम्हारे दिल में ये नहीं आया कि सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऊपर बैठा है। उसका जो फैसला होता है वो फैसला ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं। आज लोग सोच रहे हम जैसे 30,000 के बजाय और 162 भी फोकस कर लेते तो जीत जाते थे। अरे हरगिज नहीं जीत सकते। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है इज्जत दे के रहता है, अल्लाह जिसको जलील करना चाहता है वो जलील करके रहता है। आज ये सोच रहे हैं कि मलिक को हम 4 वोटों से हरा लेंगे। अरे हरगिज नहीं हरा सकते। अब्दुल मलिक को तुम क्या समझ रहे हो? क्या अब्दुल मलिक कोई मुर्गी का बच्चा है या चुड़ी का बच्चा है? तुम दादागिरी करके इलेक्शन जीतना चाहते हो? हाँ हाँ, हम बता देंगे इलेक्शन कैसा होता है। बहुत हो गया। 8 महीने पहले मेरे छोटे भाई अब्दुल मलिक के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। वो कातिलाना हमला करने वाले कौन है? तुम ही है, तुम्हारा खानदान के लोग हैं। और तुम समझते हैं कि हम ये गोली खा के, हम ये मार खा के कमजोर पड़ जाएंगे या डर जाएंगे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, मलिक को जानता हूँ, मलिक के हक में जो तुम गोली चलाई ना, हमारे लिए तो क्रोसिन की गोली थी। हम ऐसे कौन से गोली, अब हम किसी से डरने घबराने वाले हरगिज नहीं है। 15 तारीख को आपका आपके कौन की वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मालेगांव से 60 उम्मीदवार को ठहराई है। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है और मुझे भरोसा है, मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा मजहब क्या बोलता है मैं जानता हूँ। बेशक सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, उसके अलावा मेरा मजहब अगर कोई है तो वो इस्लाम है। इस्लाम मजहब हो सकता, कोई सियासी पार्टी नहीं हो सकती। क्या पार्टी का तुम इस्लाम रखते, क्या माटी का नाम इस्लाम रख के तुम इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं गलियों में फिर रहा था, तुम्हारे इस्लाम पार्टी की अपील पैरों में आ रही थी। अरे नाज़िल्लाह, तुमको क्या हो गया? मैं ये स्टेज से ऐलान करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, शेख आसिफ तुम सियासत में इतने गिर जाओगे, हरगिज़ हमको मालूम नहीं था। अगर तुम सियासत में इतने गिर सकते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर किस वजह से? अरे इस्लामी तरीका क्या होता है? इस्लामी तरीके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दीन हमको दिया है, हम जानते हैं उसके अंदर शराब हराम है, नशे का कारोबार हराम है, नशा करना हराम है, सब चीज करना हराम है। तो हम इनसे कहते हैं, बाबा आप क्या है, आप पार्टी का नाम तो रख लिए, अपने उम्मीदवारों का किरदार तो देखिए, आखिर क्या किरदार है। और तुम समझते हैं मुफ्ती साहब के नाम पे गैर गलत बातें करते हैं और मुफ्ती साहब को ये कहते हैं। तो मैं इनसे कहता हूँ, पार्टी का नाम इस्लाम रखने से कुछ नहीं होता। एक बार आके इमामत तो करके बताओ, एक बार आके फतवा तो लेके बताओ।
मुझे नहीं मालूम 5 कलमे भी पूरे पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते, नहीं मालूम, मगर अपने आप को बड़े सियासतदान समझ रहे हैं। अरे इनको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मलिक को ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको इज्जत देना चाहता है उसको इज्जत दे के रहता है। तुमने कहा कि बेशक 16 तारीख को शब-ए मेराज है, तो मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह इज्जत देने वाला है। गरीब का नाम मेराज है, मेरी पैदाइश 26 रजब की है। घर के ऊपर कुंडे थे और शब-ए मेराज का था, तो मेरी नानी ने कहा इनका नाम जाफर हुसैन रखो, तो मेरी वालदा ने कहा आज शब-ए मेराज है, क्यों ना उर्फियत मेराज रखो। तो मैं कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह 16 तारीख को शब-ए मेराज के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव के अंदर अपने बलबूते पे मेयर बनाना जानती है और इंशाअल्लाह बनाएगी। और ये आसिफ साहब, चूंकि मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, शख्सियत का नाम इसीलिए लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ अभी मलिक साहब भी कहे हैं हम बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। बेशक हमको बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहिए। और एक चीज क्या है, SIR आपको अख्तर इमाम साहब को भी सुनना है और मुफ्ती इस्माइल आजमी साहब को भी सुनना है और ये बता देना है कि अब ये जो इलेक्शन होने जा रहा है 15 तारीख को आपका एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देना है। मजलिस का निशान पतंग है। मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी सियासी जमात है, वो जानती है अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है और अल्लाह पे भरोसा करके इलेक्शन लड़ रही है। हम जानते हैं मेहनत करना हमारा काम है, चुनाव का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है, हमको मालूम है। और उसके बरखिलाफ शेख आसिफ साहब ने समझौता किससे किया आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ऐसे धोखेबाज इंसान से किया जिसको मुफ्ती साहब ने लाके उसको बताया कि ये क्या है, ये बलदिया में टिकट दिए थे, मुस्तकीम के साथ समझौता करे हैं। इंशाअल्लाह ताला यही मुस्तकीम किस तरीके का है आसिफ को भी मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं शाम को कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी करो, उन्हें अपना काम डसने का करेगा। मुस्तकीम को देने के बाद वही मुस्तकीम सुपारी लेके पैसे लेके मुफ्ती साहब को हराने के लिए 2024 के अंदर अपनी अहमियत को मुफ्ती साहब के खिलाफ ठहराया था। कुछ नहीं होता, दोनों भी एक हो गए, कोई गम की बात नहीं है। हम जानते हैं, हमको मालूम है। अब तो इन लोगों का हिसाब ये हो गया, मैं मर्द नहीं है तो क्या मेरा भाई मर्द है बोल के एक दूसरे का सहारा देख ले रहे। इंशाअल्लाह 15 तारीख को आपका एक कीमती और मंजिश को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया।